Welcome to Pariksha Parv 4.0. I am Divya Singh Sharma, your host for the session that we have till 31st of May. I am live from NCPCR office on DD National, NCPCR YouTube channels and New India Junction. You can send us your live questions for our guests to answer them. We have had a very good selection of guests this season, and we had some psychologists too on our panel. Today we have a psychiatrist to help us lessen your exam stress and anxiety. He is Dr. Rajesh Sagar, Professor, Department of Psychiatry, AIMS, New Delhi. Sir, welcome to our show, and I would like you to tell them a little bit about yourself from your own, in your own words. Good afternoon, everyone, and wonderful to be here. And my thanks to NCPCR and all those who are associated with this. And this is 4.0, and that's wonderful, and very happy that I have been associated in earlier programs as well. And this is a very, very important program, and I always look forward to it because it concerns children who are the future of our country, and young population, youth, and because most of our children, they go to school, so exam is a very, very important aspect of their life. So basically what I am working as a professor of psychiatry at AIMS Delhi. I also have a special interest to work with the children and adolescents under age of 18 years or so. That's what the mandate of NCPCR, National Commission of Protection of Child Right, is that, and that's the area where I work. We run a special clinic also for children and adolescents. Other than this, I also do a teaching for different doctors who are undergraduate, postgraduate, nurses, and other paramedical staff. And the third aspect is that I involved in the research activity also, which involves also with children, adolescents, and so on. And also I am involved with some of the policy issues, and that's what the area what I am working. But I am really I am looking forward to this discussion today. Thank you. Thank you so much, sir. It was really nice to know where you're coming from so that our live audience also can frame their questions accordingly. Sir, let's start with the first thing that Pariksha Parv is all about. How to handle exam stress and anxiety. Let's dive into straight to the topic. Okay, that's a very, very important question, I think, and also let me tell you, in recent time, we talk a lot about exam stress. A lot of the articles, they do come in the newspaper, and also I must tell you, sometime people have told me because this was not an issue. You were not discussing this, let's say 20 years ago, about exam stress and all. Why you are, we are discussing, have so many programs, currently these were not there. And sometimes people, they do say, by talking so much, you are creating a stress in us. So let me tell you very clearly that yes, exam stress is important aspect. And since I work directly with children, I know in my clinic what has been seen that we run casualty services, every day. So during 2 points where the number of attendance of children increases, or adolescents, or those who are student increases. One, during the exam time, and second, when the results are coming out. So that's the real stress which is there, and also how to handle it. There are many ways we can handle it. We need to recognize that this is a problem. Most of the time we try to deny it, we don't recognize it, and we think that it's not there. Like parents saying their children, oh, हमारे time में तो ऐसा नहीं होता था, now you are too much stress, you are talking about it. So first we need to understand that this is a problem, and that's why we need to discuss it out. And also there are, and I need to say this, most of the children, they are able to handle it very well, and that's because I want to start with a positive statement.
Most of the children, they are able to handle it well. Only there are few, only there are very few who have a problem. But this is a problem. It is not that nothing can be done about it. And such type of lecture, such type of discussion, I know that it can be really helpful, where we can really help these children and the family. So when we talk of exam stress, now stress, to understand stress, because exam stress is one type of stress. So before that, we need to know what the stress is. Stress is basically when your in a way your demands are more than your resources, in a simple way to understand. And what it means is where you have when you have symptoms of emotional symptoms, you have psychological symptoms, you have physical symptoms, when it's overwhelming. Any stimulus which is overwhelming, here it is the stimulus is the examination, where you are scrutinized, where you are looked into the lens, through a lens, and where the expectations are there for everyone, or the parents and the family, the relatives. Not only that, in fact, nowadays sometimes parents, they do say that we are not putting a pressure to my child, and so we are not putting a pressure, but why is so stressful? Let me tell you one thing, it's not that only every time parent have to say that, because children also themselves have set the bar. It's internal, and they have their own level at time. If they are not able to not performing well, then that also is leading to the stress within themselves. So they have this nervousness about what will our parents say, or will we meet their expectations or not, is what you're saying. yeah. So it's one, because the expectation, that is one part, and performance is another part, where you have to perform well, because sometimes the belief to a person is that whole my life is dependent on this one exam. If I am not doing well, then I will not be able to get a good admission, or my whole career will be spoiled. And I if think sometimes teachers and parents even say that, don't you think? They do say is important. this is I will tell you one thing, that nowadays this is there, that the parents and teacher, they are saying that they are inculcating mainly to optimize the performance. I am not blaming teacher, because after all you need to stretch the rubber. Now too much stretching will lead to the breakdown. That is what. So they want to see that how we can have a optimal performance. I think that is what the thing is. But also I think recent time a lot of this awareness also has come up. Even there are, I know that many families, they are not talking much about it. They are also aware. They also have become responsible, responsive parents in that way. They know that what the limits are. So, but at the same time, yes, because there are families where parents, they are in a way stretching. They are putting a lot of stress, lot of burden to children. Because saying that okay, your admission and all are dependent on this. So that is giving a stress to the children, because as I said, demand versus resources. When the more the demands are put in, so obviously it will lead to a stress. So which is there, I think. But at the same time, one has to see that there are, you have to optimize the performance. And also here always when I talk about stress, because since you asked about exam stress, always I say some amount of stress is needed also. We should not think that all stress is bad. And so some amount of stress actually acts as a driving force, as a motivation force to us. It is like when we have the lamp, it's like the fuel which is there. So some stress is needed to stir you up, to motivate you, to really come up to, within yourself. So that is what is known as eustress, the good stress. But when the same stress become excessive, frequent, problematic, then it leads to a problem. So when it goes, you cross a threshold of stress, so what can be done to reduce it, like contain it? No, this now it's getting too much. Is there a method? What are the ways to reduce the tension during? There are many methods. In fact, we can discuss. But simple, I would say that one is to know your own limits, that you recognize it, and to be aware about it. Sometimes, as I said, that we try to deny it. No, I am not in stress, and so on. We try to because
generally what happens, and this is what I want to say here, when one is in stressful, then people they think that this person is weak, this person has a problem, that is why people do not come forward to say that I am stressful, because ये सोचेंगे कि ये कमज़ोर है, ये भागना चाहता है, ये पढ़ना नहीं चाहता, लोग क्या कहेंगे. तो so main thing what is important, if you are under stress, maybe exam stress or any other stress, of studies, of learning or whatever, for young children. So you should not feel, or even this message is for the parents also, that you should not feel that a child is a weak in any way, And after all, the other thing is, whenever you are in stress, do not blame yourself. Do not blame yourself, and that is a common mistake we do. We try to blame ourselves कि मैं स्ट्रेसफुल हूँ, मैंने हो सकता है लोग कहेंगे कि मैंने पढ़ा नहीं होगा, या इसीलिए मेरी परफॉर्मेंस कम हो गई है. सो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट वन, यू शुड think that you are not weak person. Two, you should not blame yourself. So these are some of the important aspects when we talk of stress or exam stress, and which again, when we talk of what the remedies are, remedy one, to know the importance of being aware about it. Then there are certain things which can be done, like always we say whenever there is stress. One is we try to what we call as avoid it. Avoid in the sense that whenever we are dealing with any person who is very stressful, always talking negative, try to be away from that person. Where and the second is adapt to the situation. So one is avoid, the other is adapt. So whatever is there, like say for adapt means when you are discussing for exam, then you take the larger picture, adapt to the situation, so that is another way of doing that. The other thing is that where you can do lot of other things, say for example, which we can discuss, that is exercise, your yoga, meditations, all these may help. Now this always is important, that in a way, because as a doctor, as a psychologist or a psychiatrist can tell you, okay, you can do this, but you as a person know that what works best for you. Say for example, I like reading, so that is a stress buster for me. For other person, it may be watching a movie, or so listening to a song. So the point is that as a professional, I can tell you, okay, you do these things, but you know yourself that what works for you. So do things which works for you in the situation, because we can give only prescriptions, but ultimately you know yourself what has worked for you in the past. When you were stressful in the past, what had worked for you, so that we need to be aware of, everyone, so one can work out the solutions for all these things. Sir, you spoke about awareness. Now, you said that people are usually in denial. They don't want to accept because they fear कि stigma है. People might say कि ना कमज़ोर है इंसान या something like that. तो एक तो ये stigma हो गया. दूसरा, that they are in denial. So the first step is acceptance, like you said, and then you said tension avoid करने के तरीके हैं to avoid and negative energy and adapt to the situation, face the situations. And exercise and yoga helps, meditation helps. So that was a good tip for you all. Now we have some live questions, sir. One of the live questions is, could you please suggest that how to deal with peer pressure during exam and after result declaration? Rama from Bangalore wants to know, sir. How to deal with the peer pressure? Yeah, from Bangalore. One thing is that yes, whenever such exam situation is there, peer pressure will be there, and peer, of course, are very important part of our day-to-day life, because your friendship, your socialization, but at the same time, these peer group can also be stressful at time, because you have to live up to the expectation. That is what we discussed. You want that, and sometimes the important example of peer pressure is like people who are taking substances, or what we call these substances which are should not be starting in very young age. So what happens then, the other children, boys who comes in the contact, or they also start using that. So that's a peer pressure.
doing some activities where one person, one group is also involved, taking into consider the other group also. So that's a peer pressure. So the best way is that you know your own strengths, you know your own weaknesses, because everyone knows that, you know, what my strengths are. Sometimes peer pressure is there because you feel somewhere insecure, you know, and you feel that I do not have friends and so on. So that is why you are into the other so-called bad company at times. But at the same time, you know your own strengths, you know that what is good for you, and you know that what are the ways to relax yourself. So that's how you can handle your peer pressure, and which is not a difficult thing. And because always we believe that every individual has its own strengths and weaknesses, and we all have, you know, no one is perfect, fully perfect, and that's what we need to know. And so when you know your strengths and weaknesses, you can work on it, and so by this you can handle your peer pressure or any other factors which are there, which are negative. You can very well take care of that. So my suggestions to Mr. Rama would be this. So you're right, peer pressure is generally that, and in today's world of social media, social validation and comparison is also adding to peer pressure. Sir, another question we have from Pratik. He's from Bihar. He asks, how to prepare for my exams during this fluctuation of COVID situation? Yes, that's a very, very good question, and Pratik has asked a very important question, or can I give this answer in Hindi? Yeah, you sir, want? please. Okay. Please, sir. So initially I'll start because considering the audience in Hindi as well, because Rama was from Bangalore, and what we need to know that in a way, what Rama gave the example, and this question, what you said. It is how to prepare for my exams during the fluctuation of COVID situation, second wave, Okay, third wave. Okay. You know what has happened that during this COVID situation, the schools were closed, so most of the time children were at home, and parents were also at home, and so which added to the pressure. And there were offline, there were online classes most of the time, which most of the children are not used to it. In fact, talking to many children was that, have you ever faced online classes before? So, so it was a real stressful situation because of the COVID, because of the online, because of, work from home. Multiple factors led to these problems. So, but for the remedy for this is what always we have been saying, that this was a difficult time which will go away. It was there, and now we hope that a good time will come, and that was a bad time, and now things are normalizing because there was no other option. And in fact, UNICEF study also came, 1 in 7 children, they do have a problem. So it's a problem not only of our country, it's of the whole world, because children were affected to a great extent, but things will normalize now, and there are many methods, because one thing we should know, that with the online, the connection was there with the parent, with the school, with the teacher. In spite of the COVID situation, they all were connected, though we do understand that online is not a perfect method, but it was second to perfect in a way, because at least the connection was there, that all were connected in that way. So message is here is that we should not worry about this situation. This will go away, and things will normalize, and things will get better over a period of time. So COVID situation was problematic, but I think things will get better. Okay, sir. Sir, connected to that, we have another question. Jagritri from Odisha. She's asking, as per media reports, pandemic is coming again. How to be safe and continue my preparation for the examinations? एक होता है ना कि अभी लग रहा है कि सब ठीक हो गया है, then अभी media reports आ रहे हैं, the XZ variant. तो एक होता है डर हो गया है स्टूडेंट्स के मन में कि प्रिपेयर करें एग्ज़ाम के लिए, या सेफ रहें, या मतलब बीमार ना पड़ें. सो हाउ टू प्रिपेयर? देखिए, ऐसा है कि आपको ज़्यादा नहीं सोचना है इसके बारे में कि क्या हो रहा है. पहले भी बहुत सारी
अफवाहें हुई, बहुत सारा ऐसा डिस्कशन हुआ और कई सारे ऐसे जो प्रेडिक्शंस थी वो सही नहीं हुई हैं। वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट। आवर जॉब शुड बी व्हाट इज़ देयर एंड फॉलो द एडवाइजरी। जो सरकार के आदेश हैं, जो स्कूल के आदेश हैं, उसी को फॉलो करिए। क्या होने वाला है, क्या होगा, उसको लेके आप बिल्कुल चिंता ना करिए, क्योंकि पूरा एक सिस्टम है जो इसके ऊपर काम कर रहा है, आपको नहीं सोचना है। And I can tell you everyone around us are working 24/7. Let me tell you this, all our people who are involved with this, देखिए प्रिडिक्शंस हैं, ठीक है उन्होंने की हैं, लेकिन बहुत सारी प्रिडिक्शन इस तरह की वो गलत भी हो जाती हैं। और हमें जो करना है, जो हमारा फोकस है, जो हमें कहा गया, जो हमारा काम है, वो करते रहिए। जब जो आएगा स्थिति उस पर हम फिर उसके तब डिस्कस करेंगे। और कहते हैं ना, वी शुड वी शुड क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू द ब्रिज। हम तब जब ब्रिज के पास आएंगे तब उस पर पार करेंगे। उससे पहले इसके बारे में इतना सोचना, इतना ज़्यादा उसके लिए चिंता करना हमें क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेस ज़्यादा क्रिएट करता है। और ये कहा गया है, क्योंकि एग्जाम्पल मैं दूंगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की किताब है, इसमें उन्होंने बड़ी अच्छी एक जगह पे लिखा है कि तेंदुलकर ने कहा कि जब बॉल आती है, जब मैं फेस करता हूँ, तो मैं पुराना कैसे मैंने बैट किया उसका ध्यान नहीं होता, न कि इस पे ध्यान होता है कि मेरे आगे वाले उसमें क्या होगा। जो अभी आ रही है हमें उस पर ध्यान देना है। तो बस जो अभी की स्थिति है उस पर ध्यान दीजिए आप, ये इम्पॉर्टेंट है। और आगे क्या होगा, कैसे होगा, कौन क्या करेगा, कितने लोगों का होगा, इन सब के बारे में ना सोचिए। जस्ट लिव फॉर द प्रेजेंट, हियर एंड नाउ। अभी इसी वक्त में क्या हो रहा है उसके बारे में सोचिए आप। बिल्कुल सही कहा आपने। एग्जाम वॉरियर्स में प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है। परीक्षा पे चर्चा जब उनका इवेंट हुआ था तब भी उन्होंने कहा था कि प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए, प्रेजेंट पास्ट के वजह से प्रेजेंट को और फ्यूचर को ख़राब नहीं होने दें। दैट्स वेरी नाइस सर। जनरली जैसे कि कोविड को साइड में नहीं ध्यान में नहीं रखते हुए, व्हाट आर सम गुड मेथड्स एंड टेक्निक्स टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स जनरली? एक कोई टेक्निक या मेथड? देखिए टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं। मैं फिर कहता हूँ हर इंसान की अपनी टेक्निक होती है। अब ये एडवाइजेबल नहीं होता कि आप एग्ज़ाम से जस्ट पहले कोई भी टेक्निक को बदल दीजिए आप। और अब मैं फिर वो क्रिकेट पे आ जाता हूँ। आप बैटिंग करते हैं तो आप एक टेक्निक जब खेल रहे हैं तो इसका मतलब तुरंत उसी वक्त थोड़ी बदलेंगे, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। पहले कैसे किया, कैसे आपने बॉल पे, आप सडनली एंड वक्त पे चेंज करेंगे तो अमूमन उस पर असर जो है वो गलत ही होगा। तो जहाँ तक देखिए, जो इम्पॉर्टेंट टाइम टेस्टेड जो टेक्निक है पढ़ाई की, ये है कि पहले प्रिपेयर कीजिए। और देयर इज़ नो अदर सब्स्टिट्यूट फॉर प्रिपरेशन। और ये बड़ी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। और क्योंकि हम सोचते हैं कि चीज़ों को शॉर्टकट तरीके से कर लें, तो उससे जो है वो बात नहीं बनेगी। और प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। और आप जितना आप प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। नॉट ओनली कॉन्फिडेंस बट सेल्फ बिलीफ आता है। सेल्फ बिलीफ का मतलब है मैं एग्ज़ाम कर सकता हूँ, नॉट ओनली कर सकता हूँ, मैं अच्छा करूँगा। ये बिलीफ है, ये एक सेल्फ बिलीफ का होना बहुत ज़रूरी है। और एक सेल्फ डिटर्मिनेशन कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा करूँगा। तो ये तभी आता है जब आपने मेहनत की है, आपने उसमें अपने एफर्ट्स किए हैं। तो अपनी पूरी तैयारी करना, और कई इसमें और जैसे आपने आप कैसे रिवाइज़ करना है कुछ वक्त के लिए, कुछ अपना प्लान करनी है स्टडी, पढ़ने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। कई बार देखा गया कि पढ़ाई के मेथड्स गलत होते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें हमें याद करनी होती है, कुछ चीज़ें समझनी होती हैं, हम सारी चीज़ें रट नहीं सकते हैं। तो एक पढ़ाई, दिस चीज़ आर नोन एज स्टडिंग स्किल्स। क्योंकि आप इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझें, और बच्चे भी अगर जो स्टूडेंट है उसको अगर दिक्कत आती है तो बड़ों से पूछें कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि जो पढ़ाई, जो चैप्टर होता है, उसको जो चीज़ समझने की है वो आपको समझनी होगी, क्योंकि वो डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी से बढ़ती जाती है। क्योंकि अगर पहली चीज़ नहीं समझ पाएंगे तो आप दूसरी या तीसरी चीज़ भी पढ़ना मुश्किल होगा। तो पहले को समझिए, और अगर दिक्कत आती है डिस्कस कीजिए। कईयों के अलग अलग मेथड्स भी हैं पढ़ने के, जैसे कुछ लोग लिख कर पढ़ते हैं, कुछ लोग याद करके पढ़ते हैं। तो जो आपका मेथड है आप देखिए, कुछ लोग डिस्कस करके पढ़ते हैं।
ग्रुप डिस्कशन में जो है वो डिस्कस कर। तो सबके अलग अलग मेथड्स हैं, कुछ अपने आप अकेले में पढ़ना चाहते हैं, कुछ ग्रुप में पढ़ना चाहते हैं, कुछ ऑडियो विजुअल एड से पढ़ना चाहते हैं, कुछ ऑडियो के साथ पढ़ते हैं जो लेक्चर्स हैं उसके। तो आपका अपना मेथड है, आप जिससे भी कंफर्टेबल है। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार स्कूल में भी जब हम खुद पढ़ाई करते हैं बड़ा पर्सनलाइज मेथड होता है। कोई लोगों को चलकर पढ़ने की आदत होती है, किताब लेकर चलकर पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा ना वो पुराने वक्त में कुछ लोग किताब में नोट्स बनाते रहते थे, अलग अलग तरह के नोट्स हो जाते हैं। के पीछे जनरली नोट्स बनाए जाते हैं, स्पेशल नोट्स अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो। हाँ, तो उसके नोट्स बनाते हैं। और कई बार तो मैंने देखा है कलरफुल पूरा एक कलर, दो कलर, तीन कलर से हो जाता है, तो हाईलाइटेड हो जाता है। तो आपका अपना मेथड है जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं। कुछ है करके फिर वो लिखते हैं उसको, जो है फिर याद करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो जो आपको लगता है मेथड अच्छा है, जो काम कर रहा है, तो आई थिंक दैट्स फाइन। और क्योंकि एज ए प्रोफेशनल हम आपको अलग अलग मेथड बता सकते हैं, लेकिन जिसमें आपको कंफर्ट है, जिसमें आपको सहूलियत है, आप वो करिए। लेकिन हाँ, इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो मुद्दे की बात ये है कि जब हम पढ़ते हैं तो देखिए कि उसका जो कितना डिफ़िकल्ट है, समझने का क्या है, रटने का, याद करने का क्या है, और उसको प्रैक्टिस करें। और ये भी सोचिए कि जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, एक तो उसको बोझ की तरह ना लें, क्योंकि अक्सर ये धारणा होती है, अरे पढ़ाई है, एक पता नहीं कैसे होगा, इम्तहान देना है। देखिए, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है नॉलेज गेन करने के लिए। इसका ये हमारे लॉन्ग टर्म, हमारे एक तरह के व्यक्तित्व का एक पार्ट है। लर्निंग जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम, और उसको इसीलिए एक पर्व की तरह एग्ज़ाम लें। मैं तो कह रहा हूँ पढ़ाई को भी पर्व की तरह ही लें। हम पढ़ाई जैसे करते हैं एक एन्जॉयमेंट के हिसाब से उसको लें, जैसे हम एक फ़िल्म देख रहे हैं उसी प्रकार से पढ़ाई भी आप सोचें। तो उसको जितना बोझ की तरह लोगे उतना नेगेटिव आपको आएगा, फिर आपको लगेगा कि अरे कैसे ख़त्म हो। तो ये एक मेथड इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि उसको रिहर्स करते रहें। जितना आप रिहर्स करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। किसी भी, आप ये सोचें, वो उसे मालूम है कि मेरा कमज़ोर यहाँ है तो मैं उसमें और मेहनत करूँगा, ये मेरा ठीक है। तो वो एक सेल्फ असेसमेंट होता है। दूसरा असेसमेंट, देखिए एग्जाम्स तो असेसमेंट का जरिया है, लेकिन आपको अपने आप भी मालूम है एज ए सेल्फ असेसमेंट कि मुझे क्या मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और क्या मेरा वीक पॉइंट है। तो जो आपका वीक पॉइंट है उसको आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं, है ना। तो ये जो सेल्फ असेसमेंट है, सेल्फ इवैल्यूएशन है, या एक पीयर ग्रुप में आप पढ़ाई करने का, ग्रुप में करने का, या बाकियों से सलाह लेकर पढ़ने का, ये सब मेथड अपना सकते हैं। और ये सारे, जैसे आपने सवाल पूछा कि क्या मेथड होना चाहिए, तो ये सारे अलग अलग मेथड हैं। बट अंत में यही कहूँगा कि जो मेथड आपको सही लग रहा है, जो इफेक्टिव है, जिसमें आपके अच्छे नंबर आपको आ रहे हैं, जो आपका टाइम टेस्टेड है, आई थिंक वही करिए। जस्ट एग्ज़ाम से पहले कोई चीज़ को एकदम बदल लिए ना। अगर बदलना है तो थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए, क्योंकि उसमें एडजस्ट होने के लिए, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है। सर, आपने प्रिपरेशन के बारे में बोला कि अपने हिसाब से चलिए। एक बहुत अनोखा क्वेश्चन आया है, हाउ शुड आई प्रिपेयर अ गुड टाइम टेबल, माई टाइम टेबल डज नॉट सीम टू वर्क। उनका जो खुद का मेथड है वो, मतलब उसी से कनेक्टेड क्वेश्चन है जो हाँ, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अक्सर जो स्टूडेंट्स इस बात का डिस्कस करते हैं कि हम टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन वो होता नहीं है, और टाइम टेबल जो है पूरा नहीं हो पाता है। और देखिए, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक तो जब टाइम टेबल आप बनाएं, रियलिस्टिकली बनाएं। अब हम अक्सर क्या होता है ना, बहुत एम्बिशियसली बना देते हैं उसको, बहुत ज़्यादा उसको एग्जैगरेट कर देते हैं। रियलिस्टिक होना चाहिए कि मैं इतने देर में इतना पढ़ा हूँ तो मैं इतनी देर में इतना पढ़ सकता हूँ, इतने चैप्टर में कर सकता हूँ। तो रियलिस्टिक गोल बनाएं उसमें। और ये भी ज़रूरी है कि जब टाइम टेबल बनाएं तो किसी की सलाह ले लें, वैसे पेरेंट्स की या कोई बड़ों की, कि देखिए मैंने बनाया, उसको फीडबैक लें उसका। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ जो फीडबैक से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है। जितना आप फीडबैक लेंगे, सलाह लेंगे, उतना आपको उससे और अच्छा रहेगा। डिस्कस करेंगे, तो जब आप टाइम टेबल बनाते हैं डिस्कस कर लीजिए, और उसको ज़्यादा एम्बिशियस ना बनाइए, और देखिए रियलिस्टिक रहे, बिल्कुल ज़मीन पे ग्राउंडेड रहे। ये है
क्योंकि अक्सर क्या होता है, ये भी एक बैकफायर कर जाता है कभी कभी कि आपने टाइम टेबल तो बना लिया लेकिन अब वो पूरा नहीं हुआ, तो फिर वो उसी के बारे में आप सोचते रहेंगे, अरे ये नहीं हुआ अब, और उसमें फिर हताश हो जाएंगे, आपका सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है जिसकी वजह से। लेकिन आप सोचिए कि रियलिस्टिक आप बनाएंगे तो ये सब समस्या से आप बच सकते हैं। और कोई बात नहीं, कभी देखिए जब आप टाइम टेबल बनाते हैं तो कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, बट यू शुड नॉट वरी अबाउट इट, यू कैन कवर इट अप इन द नेक्स्ट। बट आप इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखिए, आप देखिए अक्सर हम तो कहते हैं आप टाइम टेबल का जिक्र, उसमें ये भी देखिए आपके डिस्ट्रैक्टर्स क्या क्या हैं। आपका नहीं पूरा हुआ तो किस लिए पूरा नहीं हुआ, तो मैं हाँ, तो मैं क्या करता हूँ ऐसे, उसमें मैं पेरेंट से, मैं स्टूडेंट से कहता हूँ आप मेरी लिस्ट बनाइए, आप कागज़ देता हूँ, आप मुझे बताइए आपके डिस्ट्रैक्टर्स क्या आते हैं। आपका नहीं हुआ कोई बात नहीं है, आपने टाइम टेबल नहीं किया, नो प्रॉब्लम, बट कैन यू टेल मी व्हाट द डिस्ट्रैक्टर्स वर। और फिर वो बताते हैं मेरा ये मोबाइल फ़ोन था, मेरा ये टीवी था, मेरा ये दोस्त से मुझे बात करना था, तो वो उस पर ध्यान दिए। तो एक तरह से जब वो लिखते हैं तो इसका मतलब वो फीडबैक हो गया उनको, वो बिल्कुल फीडबैक की तरह काम करता है। फीडबैक इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने भी शुरू में कहा ना मुझे दिखाइए कैसा है, तो फीडबैक है। जब हम जो चीज़ जो कर रहे होते हैं उसको हम देखते हैं ये है, तो उससे हमें फिर आगे प्रेरणा मिलती है उससे कि हमें कि तो फीडबैक देना। और इसीलिए हमारा सबका फ़र्ज़ है कि एक है, और इसका यूज़ जो है मेडिसिन में जिसको हम बायो फीडबैक भी बोलते हैं, कि कोई चीज़ मैं कर रहा हूँ, जैसे मेरा ब्लड प्रेशर है और मुझे पता है कि मेरा ब्लड प्रेशर ये है, तो उसमें मुझे मालूम पता मेरा ब्लड प्रेशर ये है, तो उसके बाद देखा गया वो कंट्रोल होने लगता है। आपका पल्स रेट हाई है, उसके बाद आपको लगता है ये है, तो उसको आप सेल्फ तरीके से कंट्रोल कर ले। तो फीडबैक का मतलब ये सेल्फ भी लेना है और दूसरों को भी देना है। पेरेंट्स का भी काम है कि फीडबैक दें, हमारा भी काम है क्या फीडबैक है वो हमें लेना है, तो उससे आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और देखिए अल्टीमेटली एंजाइटी का मतलब क्या है, एंजाइटी का मतलब ये है कि यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ। इफ़ यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ दैट मीन एंजाइटी इज ओवर। अब एंजाइटी में क्या होता है, हमें लगता है हम अपनी स्थिति पे काबू नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम स्थिति पे काबू कर लें दैट मीन एंजाइटी इज टेकन केयर ऑफ। हमारी एंजाइटी में अक्सर हमें ऐसा फील होता है कि आई एम नॉट इन कंट्रोल, मेरे थॉट्स मेरे कंट्रोल में नहीं है, यू नो। सो दैट इज़ वाई द कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट एंड द फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ऑल इज एट्स ओन वैल्यू व्हेन वी स्टडी और डू एनी एक्टिविटी फॉर दैट मैटर विच रिक्वायर्स अ ब्रेन फंक्शन। तो एंग्जाइटी को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो आपने कहा ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है और कंट्रोल में नहीं होते हैं, कि जैसे कि किसी की ट्रेन छूट रही है तो जो फीलिंग आता है स्ट्रेस वाला, इट कैन बी कंपेयर टू दैट। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे ट्रेन मतलब नॉट ओनली दैट, जैसे मान लीजिए आप स्टेशन जा रहे हैं और रास्ते में अटक गए और ट्रेन जाने वाली है, तो कैसी फीलिंग आएगी, अरे भागो दौड़ो कुछ करो, मतलब ऐसा है कि कहीं कुछ प्लेन मिल जाए मैं एकदम ही दौड़ के ट्रेन में बैठ जाऊं, तो वो सब थॉट्स आने लगते हैं और नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। ट्रेन मतलब जब एंजाइटी होती है तो चाहे आप टाइम पे पहुंच रहे, लेकिन ऐसा लगेगा ट्रेन छूट गई, अब मेरी छूट गई, छूट ही जाएगी, अब कुछ नहीं हो सकता, सामान छूट गया, गिर सकते हैं, कुछ हो सकता है आपके साथ। बिल्कुल। तो ये सब ऐसी फीलिंग बिल्कुल आ सकती है और ये एंजाइटी का ही पार्ट है ये सारा। सर ने बड़े अच्छे से नोटिस किया था कि मैंने फीडबैक लिया था शुरू होने के पहले कि फ्रेम कैसा है। एक्चुअली जब आप किसी एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठे होते हो तो हर चीज़ ऑब्जर्व हो रही होती है, एंड आई लाइक दैट सर ने ये ऑब्जर्वेशन की है। तो अनदर क्वेश्चन वी हैव सर कि जो as per me, how to control negative thinking and self-criticism due to exam fear. Atreya from Tamil Nadu is asking this. तो सेल्फ क्रिटिक्स हम लोग कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं, तो उनके उससे रिलेटेड। देखिए आत्रेय का बड़ा अच्छा सवाल है ये। सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है हम, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा सेल्फ इवैल्यूएशन, जब हम खुद को आंकते हैं तो उसमें हम क्रिटिकल भी होते हैं अपने आप को, और मैं हमेशा इसको नेगेटिव भी नहीं मानता, समटाइम इट मोटिवेट्स ऑल्सो। देखिए जब आप क्योंकि मुद्दे की बात है कि आपने अपने आप को इवैल्यूएट किया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और अब उसमें ये होता है कि हम हाइपर क्रिटिकल हों या क्रिटिकल नहीं होना भी ठीक नहीं है, बिकॉज देन ओनली यू विल इम्प्रूव ऑल्सो। हमारे में कुछ जब कमी होती होगी तब हम जो है उसको ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और तभी ये कहा गया है, इवन इस किताब में भी कहीं पे जिक्र है कि अब जब हम कंपेयर करते हैं, वो चर्चा की है हमें अपने आप compete करना है अपने आप से, न कि किसी और से। क्योंकि जब हमें लगता है कि मैं और से बेहतर हूँ तो क्या होगा, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा,
है ना। और अगर लगेगा कि मैं औरों से कम हूँ तो ऐसा फिर फ्रस्ट्रेशन आएगी। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है क्रिटिकल कुछ हद तक ठीक है, ओवर ना हो, नेगेटिव ना जाए। हाँ नेगेटिव ना जाए, और समटाइम इट्स गुड ऑल्सो, एंड यू नो योर सेल्फ कि कहाँ पे ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल जेन्यून चीज़ है, अगर क्रिटिकल है तो दैट्स फाइन, एंड बिकॉज यू कैन इम्प्रूव, देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। कोई भी चीज़ परफेक्ट, जैसे कोई भी आप कहीं पे भी जाते हैं तो उसका हमेशा फीडबैक की जैसे बात कर रहे हैं कि उससे फ़ायदा ये होता है कि आप नेक्स्ट टाइम वो चीज़ों को इंक्लूड कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को तो बीइंग समटाइम क्रिटिकल इज़ गुड ऑल्सो, बिकॉज देन यू कैन इम्प्रूव ऑन। और बट ये है कि एक्सेसिव ना हो, एक्सेसिव तो खैर सारी चीज़ें ही ख़राब हैं, और एंड बट इट्स गुड टू बी क्रिटिकल। समटाइम्स हम कहते हैं कि ओके आप फीडबैक बी क्रिटिकल, सो दैट क्रिटिकल कमेंट्स से क्या होता है कि यू नो कि कमी क्या है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, सब चीज़ें जो है हम सब अच्छी अच्छी चीज़ें बता देंगे तो कमियां कौन बताएगा फिर, है ना। तो जैसे उदाहरण के तौर पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम कोई भी चीज़ करते हैं तो सभी, जैसे हमारी धारणा है, जैसे मैं आपका दोस्त हूँ तो मैं आपकी अच्छी अच्छी चीज़ें बातें बताऊँगा, सब अच्छा है, लेकिन जब कमियाँ छुपा लेते हैं, लेकिन जब आप कमी छुपा लेंगे तो वो प्रॉपर फीडबैक नहीं हुआ, फिर आपने वो सच्चा दोस्त वो है जो तुम्हें तुम्हारे, बिल्कुल सही कहा, सच्चा दोस्त वो है जो आपकी कमियों को भी बताए, उनको भी उजागर करे, तभी आप उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। क्योंकि जब तक आप उसको कमियों को नहीं बताएंगे तब वो आप बेहतर नहीं कर सकते, आप ये आपको मानना होगा। और जो बिल्कुल सही कहा आपने, सच्चा दोस्त वो है जो आपके जो क्रिटिकल कमेंट दे, क्योंकि जैसे मैं पहले कहा कि मैं इन्वॉल्व हूँ, जैसे रिसर्च में जब हम पेपर लिखते हैं या कुछ है तो उसमें क्रिटिकल कमेंट्स आते हैं, तब उसकी हम उसमें देखते हैं कि क्या कमी और बेहतर हम कैसे कर सकते हैं उसको। तो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। अभी जैसे हम चर्चा करें, कोई भी लेक्चर लेते हैं, ऑलवेज आस्क फॉर द फीडबैक, कहाँ पे और हम बेहतर कर सकते हैं, कहाँ तक हम लोगों से और बेहतर कनेक्ट हो सकते हैं। अल्टीमेटली एम ये है, आप सब लोगों के साथ जुड़ना है हमको, और इसमें इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इसका फीडबैक दीजिए, बिकॉज एवरीवन विल नो अबाउट दिस, एवरीवन और बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये सब जो सवाल आए हैं, और उनसे, और क्योंकि अल्टीमेटली दो एम है टू इम्प्रूव अपॉन द थिंग्स। सो सर यूजुअली क्या होता है ना, लैक ऑफ मोटिवेशन फेस करते हैं स्टूडेंट्स, तो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मेंटल एंड इमोशनल साइंस ड्यूरिंग एग्जाम? ये साइंस क्या है जिससे तुम्हें पता चले कि यू हैव लैक ऑफ मोटिवेशन, और उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? देखिए, मोटिवेशन के कई कारण होते हैं। एक तो कारण है कि मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा लिंक होता है इंटरेस्ट से। अगर किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट कम होता है तो मोटिवेशन भी कम हो जाता है। जिस चीज़ आपने देखा होगा, जिस चीज़ का इंटरेस्ट होता है ज़्यादा, तो उसका मोटिवेशन भी रहता है, मुझे ये करना है, कैसे भी करना है। तो एक इंटरेस्ट एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इंटरेस्ट को बनाए रखना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़। चाहे आपका जैसे चैप्टर है, तभी इम्पॉर्टेंट है कि आप नए नए मेथड्स का, इनोवेटिव मेथड्स का उपयोग लेंगे। बेसिकली दीज आर व्हाट टू इम्प्रूव योर मोटिवेशन फॉर पढ़ाई की अगर बात करें या कोई भी चीज़ की बात करें, तो मोटिवेशन इंटरेस्ट से काफ़ी लिंक है। और ये भी ज़रूरी है समझना कि कभी चीज़ें हम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन हमेशा ही सही रहेगा। मोटिवेशन का भी अप एंड डाउन होता है। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, कोई परफेक्ट कोई नहीं होता है। तो अगर आपका मोटिवेशन पढ़ाई में कभी डाउन भी होता है तो घबराइए नहीं, उसके कई कारण हो सकते हैं। आपका हो सकता है वो जो चैप्टर है वो मुश्किल हो, समझ में ना आ रहा हो, या हो सकता है वो आपके इंटरेस्ट का ना हो, मतलब बिकॉज जैसा पहले कहा कि इंटरेस्ट और मोटिवेशन का बहुत बड़ा लिंक है, या आपका माइंड कहीं और है, इस वक्त जो है आप परेशान हैं, स्ट्रेसफुल हैं, कहीं और थॉट्स हैं, कि कहीं कुछ और सोच रहे हैं, या परिवार में कोई बीमार है उसके बारे में आपका ध्यान है। तो क्योंकि ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारा जो मन है, हमारी जो काफ़ी रिलेटेड है, जो कंसंट्रेशन है हमारे एनवायरनमेंट से बहुत रिलेटेड होता है। क्योंकि पढ़ाई करते वक्त हमारी कंसंट्रेशन सही होना ज़रूरी है, और ये भी ज़रूरी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है उससे भी हमारा मन बहुत प्रभावित होता है। क्योंकि अलग नहीं है ये, अगर आसपास जो हो रहा है उससे मन, तो आसपास ये सब चीज़ हो सकता है उसकी वजह से आपका मोटिवेशन भी डाउन हो गया। लेकिन आप, जैसे मैंने पहले कहा, आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, अपने आप को असेस कीजिए,
आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस वजह से है, तो उस चीज़ को करेक्ट कर दीजिए, तो अपने आप आपका मोटिवेशन बेहतर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प मी ऑल्सो इन माई लाइफ। सर, एक क्वेश्चन है सचिन जी का, रायपुर छत्तीसगढ़ से। क्या जीवन में पढ़ाई ही सब कुछ है? घर वाले मेरे मार्क्स और मेरे दोस्त के मार्क्स में कंपैरिजन करते हैं। इस दबाव के कारण मेरी पढ़ाई और ख़राब होती है। बहुत सा अच्छा सवाल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सचिन जी का सवाल है ये, और ये परीक्षा पर्व में ज़रूर इस तरह का सवाल डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि कुछ साल पहले मैं बताना चाहूँगा कि वन ऑफ द ये जो FM प्रोग्राम में ये डिस्कस हुआ था, इनफैक्ट दे हैड इनवाइटेड मी फॉर दैट। उसमें ये पूछा गया था सबसे कि भाई आपको अपने मार्क्स याद हैं, 10वीं में कितने थे, 12वीं में कितने थे? तो बहुत लोगों ने कहा हमें तो याद ही नहीं है कितने नंबर थे, क्या थे। और फिर दूसरा सवाल कि उससे वजह से आपको क्या फ़ायदा या नुकसान हुआ, तो किसी को पता ही नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि मार्क्स जो इट्स जस्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर है सिर्फ वो। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ओवरऑल एज ए व्यक्ति आपको क्या आपने हासिल किया है। पढ़ाई इज़ नॉट एवरी, पढ़ाई से आपका एग्जामिनेशन होता है। अब एक एग्जामिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरा आपको आंका जाएगा, वो एक मेथड है, क्योंकि और कोई मेथड नहीं है आपको आंकने का, तो एग्जामिनेशन एक मेथड है। और एग्जामिनेशन का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ जीवन जो है इसी पे निर्भर करता है। तो इसीलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो नंबर्स जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो एक नंबर है। और मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दूँ, आप किसी भी महापुरुष को ले लिए, जीवन में फेलियर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज यू लर्न फ्रॉम देम, आप सीखते हो उनसे आप। क्योंकि जब तक जीवन में आपने फेलियर को कैसे हैंडल किया है, ये आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं, कुछ देशों में मैंने देखा कि जहाँ पे खासकर कुछ क्रिकेट कैंप में वो कहते हैं कि जब तक जीवन में जिसने फेलियर नहीं किया उसको सिलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि जब उसके जीवन में फेलियर आएगा तो कैसे हैंडल करेगा उसको। स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ से आएगी उनमें? यस, सो बिकॉज ये प्रतिस्पर्धा है, तो इसमें देखो हार और जीत तो रहती है, और जब तक आप जीतते रहते हैं तब तो आपको पता नहीं लगता कि मतलब हार क्या होती है। तो हार से जो सीखता है इंसान बहुमूल्य है वो, उससे यू कैन लर्न अ लॉट, और उसको किस तरह से आपने हैंडल किया है मेंटली, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर का जहाँ जो सवाल है सचिन जी का, कि नंबर मैं कहूँगा सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ओवरऑल आपने जीवन में आपने क्या हासिल किया है, आप एज ए व्यक्तित्व कैसे हैं। और कभी कभी आपके नंबर चाहे कम हो लेकिन आप बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, बहुत अच्छे मकाम पे होते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। और ये बात बिल्कुल सही कि जब कंपैरिजन जो होता है ये बहुत गलत है, लेकिन ये स्वाभाविक है, ठीक है, इसको लेकर इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो उसको कंपेयर तो करते हैं लेकिन अगर मुझसे अगर आप पूछें तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि कंपेयर, मैं इसलिए कह रहा हूँ नहीं करना चाहिए क्योंकि कंपैरिजन कोई वैल्यू नहीं है। कंपैरिजन का मतलब, क्योंकि उस इंसान, कंपैरिजन मतलब आपने ए और बी को कंपेयर किया, हो सकता है इसकी स्ट्रेंथ क्या है और इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस कुछ होंगी तो इसकी वीकनेसेस कुछ होंगी। तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति है उसमें सारी ही कमियां होंगी, ऐसा नहीं, उसमें खूबी भी होगी, ये तो ढूंढनी पड़ेगी आपको। और जिसमें अच्छाई है उसमें भी कुछ कमजोरी होंगी। तो मतलब कहने का मतलब ये बैलेंस है। ये तो नंबर एक चीज़ है, ओवरऑल आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आई थिंक ये जो लर्निंग है ये स्टूडेंट्स से ज़्यादा है पेरेंट्स, टीचर्स एंड इवन मैनेजर्स, बॉसेस एट एवरी लेवल, उनके लिए कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हर सबके अलग होते हैं, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। सो यू हैव टू सी उनके हिसाब से देखना पड़ेगा। सर, वी हैव वन मोर क्वेश्चन। Sometimes I feel like all my efforts have been wasted. How to overcome or handle it? Shailesh from Tamil Nadu wants to know. Salish, I think that's in a way it's a very important question that sometimes what he said specifically. All my efforts have been wasted. मतलब हमने इतनी मेहनत करी है और उसका कुछ फल नहीं मिला. I think that's what he means.
तो जब तुम्हें लगता है कि any example or anything? he अच्छा, hasn't all efforts are. देखिए, you know, that's what. Whenever we are stressful or anxious, we do get you know, these type of feelings, these type of thoughts. They do come to us. You know, I will give you many other examples. You know, it may be there. Okay, I have studied so hard. I have worked so hard. But you have that feeling, you have that thought which is coming to your mind when you go for exam. You know, the question will come, maybe it's out of the syllabus, maybe I will go blank. You know, all those negative thoughts may come in spite of you have studied so hard. So these are all coming to your mind, which is irrelevant, I would say. What you have done till now, that is more important. Your hard work, what you have put in, is more important. And when you are you know, writing the exam, or when you are in the exam, so just be relaxed, don't think about all those things. You know, that is the only message I want to give to everyone in that way. So these, whenever we are stressful, so these type of we call them as a cognitive distortions. ये सब हमारे mind के distortions है, वो आते हैं. You know, sometimes the thought will know, okay, the question will come which I may not know, I will not be able to answer this question. You know, and there are many such negative thoughts which may come. You know, sometimes the thoughts, I know, पता नहीं हमारे वक्त भी ऐसे पहले के टाइम में लेना वो शाही की वो भी ले जाते, तो ऐसा लगता है मेरे पेपर में गिर जाएगी सारा, तो हो सकता है मेरे पेपर ही वो नहीं खराब हो जाएगा सारा. imaginative सो ऑल दिस, यू नो, वो तब आते हैं जब आपको एंग्शियस आप होते हैं. हो सकता है मेरा पेपर मैंने टीचर को दे ही नहीं पाया, भूल गया मैं, तो ये सब थॉट्स आते हैं. आई थिंक वी जस्ट हैव टू रिमेन फोकस्ड. आपने किया है, जस्ट बी देयर, and the confidence will come if you have studied well. If you are confident, I think you will perform well also. and खुद पे भी भरोसा रखो, trust कर. self belief, self determination, I think these are very very important aspects. जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, इसकी बहुत बड़ी importance है self belief की. और इसमें मैं एक और चीज़, self gratitude also. अब जैसे आपने कुछ अच्छा किया है, so you have to give a gratitude. Yeah, thanks yourself. Thanks, or no, you have to be kind and grateful to others also, your parents, your family, everyone around. That's but sometimes we forget that we have to thank ourselves also. We need to give a gratitude to self also. That okay, I have done efforts so much, you know, and I have done well also. Whatever, you may not get 100% even. So what you have performed well is basically your own efforts. So you have to thank yourself also, which we never do, which we often dismiss, but we should do that also. कुछ लोग आई थिंक करने लगे हैं आज, वो भी शायद सोशल मीडिया वैलिडेशन के लिए करते हैं, रियल में नहीं करते हैं. जैसे कि सेलिब्रेट करेंगे अपनी विक्ट्री खुद ही, खुद को कुछ ट्रीट देकर, पैट ऑन द बैक की जगह आजकल सेलिब्रेशन. बट डोंट डू इट फॉर सोशल मीडिया, डू इट फॉर रियल, मतलब अपने लिए. Absolutely. That is always I say. मैं तो बल्कि कहता हूँ अपनी क्लिनिक में भी, ओके, कि इवन व्हेन द पेरेंट्स कम टू मी, आई से ओके, आपने कितने बार उनको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट या पॉजिटिव वे में प्रेज किया है. यू नो, बिकॉज सम टाइम ऑलवेज पेरेंट्स ने डॉक्टर है तो सबको सिर्फ नेगेटिव बातें, गलत बातें ही बतानी है. मैं कहा नहीं, मुझे अच्छी बातें बताइए आप इसकी. तो सम टाइम पेरेंट्स हैव टू थिंक एक्चुअली कि अच्छी बात बताने के लिए. मैं कहा नो, ऑलवेज इन अ डे व्हेन अ चाइल्ड हैज डन गुड, ऑलवेज से गिव अ प्रेज टू अ चाइल्ड. आपने एक वर्ड यूज किया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. तो आपको लगता है क्रिटिसिज्म करते वक्त देयर आर पेरेंट्स और टीचर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग वर्ड्स, बिकॉज एक होता है नेगेटिव क्रिटिसिज्म होता है और एक होता है आई थिंक एनकरेजिंग क्रिटिसिज्म या पॉजिटिव प्रैक्टिकल जो उनको बेहतर करे. तो कुछ कोई टिप्स हैं जो पेरेंट्स के लिए स्पेशल? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने दिव्या जी. ये हमें अक्सर, देखिए क्या होता है, इसका सिंपल जो चीज़ है, अगर आप कोई चीज़ के लिए, इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी असर्टिव, देयर इज़ नो डाउट. अगर कोई चाइल्ड और यू नो योर चाइल्ड इज़ नॉट डूइंग वेल, सो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव अ फीडबैक. अगर गलत चीज़ को आप सही तो नहीं बोल सकते, यू कैन से दैट. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमेशा याद रखना, अगर आपने कोई चीज़ क्रिटिकल कमेंट दिया है, एट द सेम टाइम यू शुड ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिव टू गिव अ पॉजिटिव कमेंट ऑल्सो. अगर उसने कुछ अच्छा किया है तो आपको पॉजिटिव भी देना होगा. लेकिन अक्सर क्या होता है, हम नेगेटिव तो दे देते हैं क्रिटिकल, बट पॉजिटिव नहीं भूल हम नहीं दे पाते. तो कभी कभी मैं क्या करता हूँ, मैं उनको कहता हूँ ओके टेल मी इन अ डे आपने कितने पॉजिटिव कमेंट दिए, कितने नेगेटिव के. अक्सर नेगेटिव की लिस्ट ज़्यादा होती है, पॉजिटिव की कम होती है, हम भूल जाते हैं. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट.
सेकंड पॉइंट है, जब हम डिस्कस करते हैं, एक वर्ड होता है न्यूट्रलाइजिंग स्टेटमेंट। आप कोई भी चीज आप कहते हैं आपको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ओके, यू आर यू हैव अ प्रॉब्लम इन ओके मैथ्स बट यू आर गुड इन इंग्लिश, आप उसको बैलेंस कर रहे हैं आप, मतलब जस्ट सी। सो उससे क्या होगा कि दैट मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिव इनफ, यू नो कि मेरे पेरेंट्स जो हैं या मेरे टीचर जो हैं, दे ऑल्सो नो द अदर साइड ऑल्सो, दे आर सो रिस्पॉन्सिव कि ये तो उन्होंने बताया बट ये भी उनको मालूम है। सो देन यू टेक इट वेरी पॉजिटिवली, आप उस क्रिटिसिज्म को बड़े पॉजिटिव वे में लोगे आप। और मैं आपको सही बताऊं, ये बल्कि ये स्टडी भी है, स्टूडेंट्स जो है दे लाइक द टीचर not because they were always positive, sometimes they like because they were critical also. They were critical because they made them, you know, एक तराशा उन्होंने उसकी critical comment देकर ही उसको बेहतर बनाया। तो ये भी, और मैं बताऊं कई स्टूडेंट उसको लाइक भी करते हैं, पसंद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई वांट समथिंग शुड टेल मी द नेगेटिव थिंग सो दैट आई कैन इम्प्रूव ऑन, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक क्रिटिकल कमेंट्स की आपने बात, उसको कहने के अलग अलग तरीके हैं, और कई बार आप उसको जिस ढंग से कहें वो कभी कभी वो मार्वलसली तरीके से अच्छी तरह से भी काम करता है। आई थिंक द टोन, द वर्ड्स यूज्ड मैटर्स, और उसके साथ आपने क्या चीज को सैंडविच करके बोला है, दो चीजें एक साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दिस ऑल मैटर, इट इज नॉट द वर्ड्स व्हाट यू सेड, द हाउ यू हैव सेड इट, द वे यू हैव सेड इट, आई थिंक दैट आल्सो मैटर्स। कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन द लाइंस, जो है ना वो, और मैं एक चीज बता दूं, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, दे नो कि कहाँ पे क्या है, और वो समझ जाते हैं चीज़ों को, और इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है उनको उसी भाषा में उनको समझना। सर, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों की तरफ से एक मेंटल ब्लॉक हो जाता है पेरेंट्स को लेके, तो पेरेंट्स या टीचर्स या जो भी हैं तुम्हारे लाइफ में गाइड, वो तुमको कितना भी अच्छा बोलें बट तुम्हारे दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक हो गया है कि नहीं, ये तो हमारे लिए बुरा ही सोचते हैं, इनको तो हमारी कोई बात पसंद ही नहीं आती है। तो बच्चे कैसे इस मेंटल ब्लॉक से निकलें कि जैसे कि हमने कहा कि जो तुम्हें क्रिटिसाइज करता है वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है, तो पेरेंट्स और टीचर्स का तो काम ही है तुम्हें बेहतर करना, तो वो तो तुम्हारा भला चाह रहे हैं, तो ये स्टूडेंट्स को समझाएंगे कैसे कि बुरा बोल रहे हैं? तो नहीं, देखो, जैसे बताया कि अगर वो सोचते हैं कि ये तो हमेशा मेरा नेगेटिव ही सोच रहे हैं, इसको हम अपनी साइकोलॉजी भाषा में इट्स ट्राइंग टू जनरलाइज द स्टेटमेंट। कोई भी एक बार हुआ उसको लगता है कि हमेशा ऐसा होगा, हमेशा ही मेरा बुरा सोचेंगे, एक बार ऐसा हुआ लेकिन नो, तो इस तरह, हालांकि वो ऐसा नहीं सोचते होंगे लेकिन कि मन में ऐसा ख्याल आता है, हाँ मेंटल ब्लॉक हो गया। तो उसमें देखिए उसका सीधा वो है अपना, जैसे हमने बताया, योर ओन सेल्फ एस्टीम, योर ओन कॉन्फिडेंस, योर सेल्फ बिलीफ, और एक और वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एफिकेसी। मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में। सेल्फ एफिकेसी का मतलब है द बिलीफ दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज राइट, नो, मैं ये कर सकता हूँ, यू नो, दैट्स अ सेल्फ एफिकेसी, दैट्स अ बिलीफ विद इन योर सेल्फ, यू नो, कि मैं एग्जाम अच्छा कर सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट, और सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, तो ये जो थॉट्स इधर उधर आती हैं वो सब आपकी ठीक हो सकती हैं। और जैसा पेरेंट्स अगर ये सोचते हैं कि हमेशा ही खराब करेगा, तो वो सब चीज़ों से यू कैन ओवरकम ऑल दिस थॉट्स। तो अपने जो माइंड के थॉट्स हैं उनके कंट्रोल में आप खुद ही हो, तो यू हैव टू, इसलिए सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सारा जो आप कह रहे हो। Sir, we have few more questions before our session concludes. Good afternoon, sir. Society does not value those one who are not good in studies. Is it correct? Aman from Varanasi, UP wants to know. अमन को बस ये कहेंगे, ऐसा नहीं है, यू नो, स्टडी इज अगेन वन पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड इट्स जस्ट नंबर्स आर न्यूमेरिकल वैल्यू। आई थिंक आपका ओवरऑल, आपका डेवलपमेंट, ओवरऑल पर्सनालिटी, आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और ये ज़्यादा महत्व है, ना कि सिर्फ एक नंबर, जो कि नेवर एवर थिंक नो नंबर ही लाइफ और डेथ है आपकी जीवन में, और कुछ नहीं है। एक रोड जो है वो ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। अगर एक रोड बंद होती है तो 100 और खुल जाती हैं, ये मान के चलिए आप।
और बहुत कुछ इंसान सीखता है, इवन जहाँ उसको ठोकर लगती है या जहाँ उसको ऐसे अनुभव होते हैं तो उससे बहुत कुछ सीखता है वो, तो ये मानकर चलें और आई थिंक दैट्स फाइन. Sir, another question we have is from Rishikesh, Uttarakhand. How can we focus on study for exam as we did offline in front of the teachers? Vidya wants to know कि online वो possible नहीं हो पाता है, same level of concentration. ये बात सही है कि जो चीज़ ऑफलाइन है, रियल क्लास में है, जो स्टडीज़ या कंसंट्रेशन आप, क्योंकि आप उसके यूज टू हैं, आपने अभी तक आपने इतने साल तक जो है उसी मेथड में पढ़ा है, चाहे और सडनली आपको अब ऑनलाइन कहा तो डेफिनेटली देयर हैव बीन अ प्रॉब्लम विच आर जेन्युइन प्रॉब्लम इन फैक्ट, बिकॉज I would say the reason being that there was no other alternative, because आप स्कूल जा नहीं सकते, आप कुछ और कर, तो सेकंड बेस्ट सॉल्यूशन यही था कि आपको ऑनलाइन हो, बिकॉज यू आर फीलिंग कनेक्टेड और यू आर बी इन टच विद द स्टडी, बिकॉज और ये बात सही है कि इट वॉज not the ideal situation, but there was no other alternative, I would say, and in that circumstances at least you were in touch with your studies and all. So and we hope that things in the future will also improve and will get better with respect to this. Thank you, sir. So one question more. What type of activities to opt in order to relax my mind during my exams? Indrajit from Kullu, Himachal Pradesh wants to know कि किस तरह की activities से relaxation होगा exams के दौरान. देखिए बहुत सारी एक्टिव, मतलब कुछ सिंपल शब्दों में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, वो है योगा है, योगा के अलग अलग आसन्स हैं, फिजिकल एक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है. आई थिंक हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाए. फिजिकल एक्टिविटी कैन प्रिवेंट द प्रॉब्लम एंड कैन ऑल्सो इज़ वेरी इफेक्टिव व्हेनेवर यू आर एंग्शियस और इवन स्ट्रेस के लिए. और ये देखा गया है कि जो बल्कि मैं बताता हूँ, जो स्टडी हुई है उसमें जैसे ही स्कूल खुले उसमें बहुत सारे बच्चों को स्कूल खुलते वक्त में प्रॉब्लम्स हुई, यू नो, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स वर देयर. बट ये देखा गया, ये तो एक बात है, लेकिन कुछ जिसमें फिजिकल एक्टिविटी थी बच्चों में, उनको प्रॉब्लम नहीं थी. तो आप समझ सकते हैं कि एक तो ये है कि स्कूल खुलते वक्त जो है प्रॉब्लम वो जो समझी जा सकती है कि इतने दिनों तक वो घर पे थे और जैसे स्कूल गए उनको दिक्कतें आई, लेकिन जिनको जो बच्चे जो है फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे उनको प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं. तो इसलिए आप समझ सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी का इतना इतना इम्पॉर्टेंट रोल है टू टेकिंग केयर ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट एज वेल एज द मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट ऑल्सो. सो इसको मानना बहुत ज़रूरी है. और इसीलिए तो आप ये सारी चीज़ें, फिजिकल एक्टिविटी, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और अपनी हॉबीज़, इंटरेस्ट सब जो कायम रखे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. यू मे नॉट बी देयर फिजिकली बट फीलिंग कनेक्टेड, यू नो, लोगों से जुड़े रहना, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है. और आपका एनवायरनमेंट कंड्यूसिव, say for example for any child, giving that environment is important. So there are many things, these are important things. Asking a child to, you know, do the things of their own interest, your hobbies, your drawing, painting, writing. I know that there are many children who has, you know, marvelous, you know, the way they have shown their interest. नई हॉबीज सीखी during the COVID, और जो पहले करते आ रहे थे वो भी और सीखा, उन्होंने नई चीज़ें सीखी. तो ये सबको इतना क्योंकि वक्त मिला पेरेंट्स के साथ वक्त बिताने का, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वक्त बिताने का, तो ये सारी एक्टिविटीज़ करते हुए दे वर एबल टू इन अ वे गेट मोर कॉन्फिडेंस विद इन देमसेल्फ, सेल्फ कॉन्फिडेंस आया. आई थिंक these activities can help a person to get over the crisis situation. इंद्रजीत, आपको और एक्टिविटीज़ चाहिए तो एग्जाम वॉरियर्स में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ लिस्टेड हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं. एंड लाइक सर सेड, फिजिकल एक्टिविटीज़ हेल्प कंट्रोल योर मेंटल एबिलिटीज़ टू. सर, बिफोर वी कंक्लूड, वी आर जस्ट अबाउट टू एंड द सेशन, आई वुड लाइक यू टू टेल अस कि डिप्रेशन का शिकार जो चाइल्ड एडोलेसेंस एज आपकी स्पेशलिटी है, तो उसमें डिप्रेशन के शिकार होते हैं लोग, स्टूडेंट्स, वहाँ तक बात पहुँचती है? बहुत सही सवाल किया है. आई थिंक ये अपने आप में पूरा चर्चा का विषय है. बच्चों में भी डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि गलत धारणा है कि बच्चों को डिप्रेशन नहीं हो सकता. बिल्कुल हो सकता है, होता है. हमारी क्लिनिक में आते हैं और इसको पहचानना बहुत आसान है. यू हैव फीलिंग ऑफ लो, लैक ऑफ इंटरेस्ट,
रोने का मन करे, कंसंट्रेशन ना हो, सेल्फ हार्म का थॉट्स आए, तो ये सब हैं। तो हो सकता है डिप्रेशन हो, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो, और पढ़ाई में मन ना लगे, तो ये सब हो सकता है। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इट्स ट्रीटेबल, पूरी तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं। देयर आर मेनी मेथड्स, दवाइयाँ हैं, थेरेपी हैं अलग, तो इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी इसका भयानक रूप हो जाता है अगर, और ख़ासकर ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाए, या जब रिज़ल्ट आता है तब स्ट्रेस होता है, तो ये सब हो सकता है। इसीलिए घबराएं ना अगर ऐसा है, हेल्प लें, और बिल्कुल यू कैन बी परफेक्टली फाइन। इनफैक्ट देयर आर मेनी एग्जाम्पल जहाँ पे पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं इस तरह के बच्चे, अगर इस तरह की प्रॉब्लम हुई है उनको तो। Thank you so much, sir. We had a lovely session today, and I would like to conclude by saying कि अगर आपको और भी कोई queries हैं एंग्जाइटी रिलेटेड, डिप्रेशन रिलेटेड, आप हमारे NCPCR यूट्यूब चैनल्स, हमारे न्यू इंडिया जंक्शन चैनल और दूरदर्शन नेशनल के यूट्यूब चैनल्स पर सर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आप लिख सकते हैं। वी विल ट्राई टू मेक द क्वेश्चंस रीच हिम, और सर भी खुद शायद अगर चेक करेंगे तो उसका डायरेक्टली भी जवाब दे पाएंगे। वी विल ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। दिस इज दिव्या सिंह शर्मा साइनिंग ऑफ। नमस्कार।